Good morning everyone. Our today's topic is techniques of scientific management. The techniques of scientific management basically help in the application of scientific principle of management. For this, Taylor suggested the following technique. So let's start. Our first technique is functional foremanship. Who is foreman? Foreman is basically the lowest ranking manager and the highest ranking worker with whom the worker are in face to face contact on a डेली बेसिस. तो फोरमैन कौन होता है? फोरमैन क्या होता है? हमारे लोअर लेवल का पर्सन होता है और कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है? डेली इंटरेक्ट करता है किसके साथ? वर्कर के साथ. तो व्हाट वी से कि कहीं ना कहीं जो एंटायर प्रोसेस है प्रोडक्शन का, प्लानिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का एंड कंट्रोल का किस पे डिपेंड करता है? फोरमैन का. सो Taylor identified a list of qualities of a good foreman and found that no single person could fit them all. उनका बिलीव था किसी भी एक सिंगल पर्सन के अंदर सारी क्वालिटी नहीं हो सकती. एक सिंगल पर्सन एक्सपर्ट नहीं हो सकता प्रोडक्शन में, प्लानिंग में एंड कंट्रोलिंग में. तो उनका बिलीव था कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिफरेंट फोरमैन टू डील विद डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क. So according to this technique, the task of supervision is divided into the several specialized function and each function is entrusted to a specialized foreman. So for this, Taylor suggested 8 foremen for giving the instruction to the workers. Basically, Taylor suggested the division of factory into 2 departments. One is planning department, the another one is production department. So, under the factory manager, there will be a planning in charge and a production in charge. And basically, if we talk about the division of work, अगर हम यहाँ पे division of work की बात करेंगे तो it is basically the extension of division of work. यहाँ पे total work को divide किया जा रहा है. बट हम एक प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेटेड है, यूनिटी ऑफ कमांड. किसका? फ्यूल का. क्योंकि यहाँ पे वर्कर को इंस्ट्रक्शन किससे मिल रही है? 8 डिफरेंट फोरमैन से. फाइन. तो यहाँ पे एक हमने कहा कि एक फ्यूल प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है फंक्शनल फोरमैनशिप, और दूसरी तरफ हमने क्या कहा है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड फ्यूल का प्रिंसिपल है फंक्शन ऑफ फोरमैनशिप कहीं ना कहीं उसे वॉयलेट कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा. सो अकॉर्डिंग टू दी टेलर, बेसिकली द टोटल वर्क divided into 2 main categories and then further divided into 4 under the 4 foremen. So let's understand the function of each foreman. So if we talk about in planning department, the first is instruction card clerk. Basically the job of instruction card clerk is to draft the instruction for the workers. जितनी भी instructions देनी है workers को वो कौन करता है? instruction card clerk. The second one is route clerk. Basically specify the route of the production. Second, time and cost clerk, as the name reveal, to prepare the time and cost sheet. Disciplinarian, to ensure the discipline in the organization. Next, the production. In production department, there are 4 foremen. The first job of speed boss is to ensure timely and accurately completion of job. If we talk about the gang boss job is to keep the machine and tools etc. ready for the workers, or you can say ready for the operation by the workers. Next one is repair boss. Name suggests to ensure the proper working condition of machines and tools. Next is inspector. So to check the quality of work. So these are the functions of 8 foremen. The basic purpose of the function foremanship is to ensure that कि जो worker है वो instruction ले, वो instruction किससे ले? एक्सपर्ट से. यानी कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, जो रूट क्लर्क है, टाइम क्लर्क है, डिसिप्लिनेरियन है, स्पीड बॉस है, गैंग बॉस है, रिपेयर बॉस है या इंस्पेक्टर है, ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं. तो वो वर्कर अगर एक्सपर्ट से गाइडलाइंस लेगा या
ऑर्डर्स लेगा तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर एग्जीक्यूट करेगा अपने वर्क को, और इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग दी प्रोडक्टिविटी. So main purpose of functional foremanship is to increase the efficiency of worker by getting the instruction by the expert. So this is all about the functional foremanship technique. Our second technique, standardization and simplification of work. Basically this is two technique. One is standardization and the another one is simplification of work. Let's start by standardization. Standardization refers to the process of setting the standards for every phase of business operation. What is standard? Basically standard क्या है? Standard क्या है? To fix certain value or a standard in quality and quantity of goods. तो किसी भी इक्विपमेंट के अंदर अगर हम स्टैंडर्ड की फेस करने की बात करें तो हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ही ले रहे हैं उस पर्टिकुलर गुड्स का या रॉ मटेरियल का, पर्टिकुलर टाइप का ही इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, मटेरियल यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. एडवांटेज क्या है इसका? इट हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल. ऑल्सो इंश्योर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन्स. तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का? लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हम एक चिप्स खाते हैं, हर टाइम अगर आप लेस का चिप्स एक पर्टिकुलर फ्लेवर का लोगे, एवरी टाइम यू फाइंड द सेम टेस्ट. भले ही आप इंडिया के किसी भी जगह पे हैं, कहीं से भी वो चिप्स खरीदें, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. क्योंकि एवरी टाइम उस कंपनी ने क्या है, वो एक सेम टाइप का पोटैटो यूज किया है, सेम प्रोसेस के थ्रू उसको क्या किया है, सेम प्रोसेस के थ्रू उसे प्रोसीड किया है, तभी वो क्या हो रहा है, सेम स्पाइसेस यूज हो रहे हैं, तो सेम टेस्ट हर बारी वो डेवलप हो रहा है. दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. सो टू इंश्योर द क्वालिटी इट इज वेरी मस्ट टू फॉलो द स्टैंडर्डाइजेशन. नेक्स्ट आर simplification. What is simplification? Simplification basically refers to the eliminating the superfluous or unnecessary varieties, sizes and grades of the product manufactured by the organization. Simplification का मतलब है सिंपली अपने टास्क को सिंप्लीफाई करना है. अननेसेसरी अगर हम बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करेंगे तो इट वुड बी बेटर कि हम क्या करें, सिर्फ कुछ ही चीजों पे फोकस करें और जो क्या हो वो हमारा बेस्ट हो. सो दिस सिंप्लीफाइड वर्क का मतलब है कि अननेसेसरी हमें बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं करनी, हमें उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जिसके अंदर हम अपना बेस्ट दे सकें. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो वो भी रिड्यूस कर रहा है कहीं ना कहीं अपनी वैरायटीज ऑफ सोप्स की, सो दैट ही कैन गिव मोस्ट अपना वर्क जो है कहीं ना कहीं बेटर और बेटर रिजल्ट दे पाए. So this is about the standardization and simplification. I repeat again, अगर हम standardization की बात करें तो हम एक प्रोडक्ट के अंदर एक स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन में हम सिंपली जो अननेसेसरी टास्क हैं, जो अननेसेसरी वेराइटीज हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहे हैं. उससे एडवांटेज क्या है कि जो लेबर है, जो कॉस्ट है, हर चीज के लिए जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. सो दिस इज अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. थर्ड टेक्निक, मेथड स्टडी. मेथड स्टडी इज कंसर्न विद द फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब. Basically, there are various methods of doing the job. So, Taylor focused here to find out the best way to do a task. तो टेलर का फोकस क्या था कि एक पर्टिकुलरली एक ही मेथड जो बेस्ट हो वो बेसिकली फाइंड आउट करना. तो इससे एडवांटेज क्या होगा, इट हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर. तो टेलर का बिलीव था कि बेस्ट मेथड फाइंड आउट करने के लिए हर लेवल पे क्या होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, जो स्टार्ट कहाँ से हो, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल दी प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू दी कस्टमर. तो हर जगह पे हम बेस्ट मेथड की बात करेंगे, चाहे प्लांट लेआउट की बात हो, चाहे प्रोडक्ट डिजाइन की बात हो, चाहे
मटेरियल हैंडलिंग की बात हो या हम वर्क प्रोसेस की बात करें। एक यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, देयर इज अ 2 मेथड, लीफो और फीफो मेथड होता है जिसके अंदर हम स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर दोनों में से कोई एक मेथड आप यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड। तो हर टाइम क्या होगा, वही मेथड यूज होगा। ठीक है, सेम लाइक अगर हम एक कार को डिजाइन कर रहे हैं तो उसके असेंबल करने का एक प्रोसेस है, तो आपने एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट कर दिया जिसके थ्रू आप कार को असेंबल कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली हेल्प्स इन मिनिमाइज दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इससे पहले उस पर रिसर्च की होगी ना कि कौन सा बेस्ट मेथड है जिसके अंदर मैक्सिमम आप आउटपुट दे रहे हैं और मिनिमम कॉस्ट आ रहा है। फाइन, दिस इज अबाउट दी मेथड स्टडी। Now our fourth technique, that is motion study. Motion study basically refers for making thorough analysis of various motions being performed by the workers. So basically यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि जितनी भी मूवमेंट्स हैं वर्कर की उनको आइडेंटिफाई करना है, लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड जो भी वो एक काम को करने के लिए जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करना है और डिटेक्ट करना है एंड एलिमिनेट करना है अनप्रोडक्टिव मोशन। एडवांटेज क्या है, कहीं ना कहीं अगर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करेंगे तो इट हेल्प्स इन सेविंग दी टाइम एंड इंक्रीज दी प्रोडक्शन। टेलर का यहाँ पे बेसिकली फोकस क्या था कि जो भी अननेसेसरी मूवमेंट होते हैं उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होता है उन चीजों में। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक अगर एक वर्कर काम कर रहा है और उसका जो टूल बॉक्स है उस मशीन से काफी दूरी पे रखा गया है, तो बार बार जब वो उसे टूल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो अननेसेसरी अपना टाइम कंज्यूम करेगा किसके लिए, टूल बॉक्स को पिक करने के लिए। सो यहाँ पे क्या है, अगर उसके नियर बाय होगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए हेल्प होगा। तो यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि वो वर्कर अननेसेसरी अपना टाइम कंज्यूम कर रहा है किस चीज के लिए, कहीं ना कहीं लोकेट करने के लिए टूल फ्रॉम दी टूल बॉक्स। तो यहाँ पे उसने वो एलिमिनेट किया तो कहीं ना कहीं उसका टाइम सेव हुआ। तो उसने किस पे फोकस किया इस टाइम को, टू इंक्रीज हिज प्रोडक्टिविटी। टेलर ने बेसिकली बहुत सारी चीजें यूज की थी, लाइक स्टॉप वॉच, मूवी कैमरा, बहुत सारे सिंबल यूज किए थे टू आइडेंटिफाई दी वेरियस काइंड ऑफ मोशन। सो दिस इज अबाउट मोशन स्टडी। इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंड एलिमिनेट दी अननेसेसरी मूवमेंट्स which help in saving the time and increase the production. Next technique, time study. Time study refers to a technique which is used to determine the standard time taken by a workman. Standard time here means average time, मतलब एक वर्कर को एवरेज कितना टाइम लगता है किसी भी पर्टिकुलर यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। It helps in determining how much work an employee should be able to do within a given period of time. इससे एडवांटेज क्या है, इससे एडवांटेज ये होगा कि हम डिसाइड कर पाएंगे कि कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। सपोज अगर कोई 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है सपोज आपको, और हमें पता है कि 10 आवर्स में 10 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो अगर एक दिन में आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी, 10। इट इज अंडरस्टूड। ऑल्सो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग दी लेबर कॉस्ट। इसके साथ इसका एक और भी एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो भी वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑल्सो एबल टू डेवलप दी इंसेंटिव स्कीम। तो यहाँ पे क्या है, द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग दी सेवरल रीडिंग, जिसमें आप वॉल्यूम देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क देखेंगे, साइकिल टाइम देखेंगे ऑफ द ऑपरेशन एंड द टाइम मेजरमेंट कॉस्ट देखा जाएगा। देन आफ्टर डिसाइड दी स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय दी वर्कमैन। So this is the basic purpose of the time study. Now move to the second technique, that is fatigue study. Fatigue study basically refers to determining the amount and frequency of rest intervals required in completing of task. तो बेसिकली यहाँ पे अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, अमाउंट का मतलब है कितने
टाइम का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, हाफ एन आवर का होना चाहिए, 45 मिनट्स का होना चाहिए या 15 मिनट्स का होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार एम्प्लॉय को रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए। तो फैटीग स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? फैटीग स्टडी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम क्या मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस वर्क करके कहीं ना कहीं एक टायर्डनेस होती है अमंग दी वर्कर्स, तो उससे क्या है, उसका जो स्टेमिना वो कम होने लगता है प्रोडक्टिविटी के लिए। तो बीच में अगर हम कोई रेस्ट इंटरवल दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, इट हेल्प इन गेनिंग दी लॉस्ट स्टेमिना। तो एडवांटेज क्या होगा, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दी प्रोडक्टिविटी। तो टेलर ने यहाँ पे किस चीज का इंसिस्ट किया? टेलर ने यहाँ पे इंसिस्ट किया कि वर्कर को प्रॉपर अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी रेस्ट इंटरवल का मिलना चाहिए, सो दैट वो क्या करे, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए। इसके साथ साथ इसका एडवांटेज क्या है, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन अवॉइडिंग दी एक्सीडेंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने कॉन्शियस माइंड में काम कर रहा है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वीक फील नहीं कर रहा या मेंटली टायर्ड फील नहीं कर रहा। उससे क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है। अगर वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा तो एक्सीडेंट्स अवॉइड होंगे, कम होंगे। कहीं ना कहीं जो रिजेक्शंस है, रिजेक्शंस मीन्स जो भी उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है या जो वर्कर ने जो भी काम कर रहा है उसके अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर जो रिजेक्शंस होंगी वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। साथ के साथ अगर इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात करें तो वो भी काफी हद तक फैटीग स्टडी के थ्रू अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपली द पर्पज इज टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क। Now, seventh and last technique, differential piece wage system. According to this technique, it refers to a system in which efficient and inefficient workers are paid at different rates. यहाँ पे different rates का क्या मतलब है? different rates का मतलब है कि जो efficient worker हो उसको different wages मिले और जो inefficient worker हो उसको different wages मिले। यानी कि दोनों का अलग अलग स्लैब होगा wages देने के लिए। यहाँ पे टेलर ने इस सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस किया? यहाँ पे टेलर ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस इसलिए किया कि उन्होंने फील किया कि जब हम किसी भी वर्कर्स को एक सेम वेज स्लैब देंगे तो यहाँ पे जो एफिशिएंट वर्कर होगा वो कहीं ना कहीं अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन नहीं रख पाएगा। साथ के साथ जो इनएफिशिएंट वर्कर होगा वो भी अपने काम को लेके सीरियस नहीं होगा और अपनी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं लेकर आएगा। सपोज हम बात करते हैं, अगर दोनों ही वर्कर को चाहे एफिशिएंट हो और इनएफिशिएंट हो, दोनों ने अलग अलग यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, एक 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और एक 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, पर एट द एंड दोनों को वेजेस कितने मिल रहे हैं? 5,000 रुपीज। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंट वर्कर है वो डीमोटिवेट होगा अपने काम को लेके, अपने वेजेस को लेके, और नेक्स्ट टाइम से मे भी हो सकता है वो अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन ना रखे। और साथ के साथ इनएफिशिएंट वर्कर है, अगर उसको भी उतना ही वेज मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो कभी भी अपने काम को लेके सीरियस नहीं होगा और अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं करेगा और नेक्स्ट टाइम अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी उसके। सो इसलिए टेलर ने क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जहां पे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को जो वेजेस हैं वो किस रेट से मिले? डिफरेंट रेट से मिले। लेट्स अंडरस्टैंड एन एग्जांपल। सपोज करो एक स्टैंडर्ड टास्क है 100 यूनिट्स और अगर कोई भी वर्कर 100 यूनिट से कम प्रोड्यूस करता है तो उसे कितना वेज मिलता है? 40। यानी कि जो भी वेज रेट होगा पर यूनिट कितना होगा? 40 रुपीज। सेम लाइक अगर वो 100 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करता है या इक्वल प्रोड्यूस करता है उस रेट में उसका वेज रेट क्या होगा? 50। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एफिशिएंट वर्कर के लिए अलग वेज रेट है और इनएफिशिएंट वर्कर के लिए अलग रेट है। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 10 रुपीज का। सपोज अगर एक वर्कर 110 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो कौन से स्लैब में आएगा? सेकंड स्लैब में। इट मीन्स उसका वेज कितना होगा? 50 रुपीज वेज रेट से मिलेगा उसे पर यूनिट। तो फाइनली कितना वेजेस हुआ उसका? 5,500। नेक्स्ट अगर कोई दूसरा वर्कर 90 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका वेज कितना हुआ? 40, क्योंकि कौन से स्लैब में आ रहा है? लेस देन 100 यूनिट्स के स्लैब में। तो उसका वेज कितना होगा? 3,600। यानी कि दोनों की वेजेस में कितना डिफरेंस है? दोनों की वेजेस में डिफरेंस है 9,100।
1900 आई थिंक इज अ सफिशिएंट अमाउंट, जहां पे एफिशिएंट अपने जो वर्क को एफिशिएंसी को मेंटेन रखे और नेक्स्ट टाइम भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा. बेसिकली इट एक्ट्स एज अ मोटिवेटर. साथ के साथ जो इनएफिशिएंट है उसके लिए भी ये है एक चैलेंज है कि अगर मैं भी ज्यादा काम करूं तो मे बी नेक्स्ट टाइम उसको भी ज्यादा सैलरी मिले, तो वो भी मोटिवेट होगा नेक्स्ट टाइम अपने काम को लेके. तो द पर्पस बिहाइंड दिस टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ एक्स्ट्रा अर्निंग, टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स बाय द वर्कर. तो बेसिकली डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या था कि हमेशा एक एज अ इंसेंटिव काम करे, क्या उसके वेजेस, जहां पे वर्कर हमेशा ही मोटिवेट हो काम को, मतलब काम में एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए. दिस इज अबाउट द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.